example of one-dimensional wave equation. To solve the following wave equation, curl square u by curl t square is equal to c square curl square u by curl x square, where x is lying between 0 and 1 and t is greater than equal to 0. Satisfying boundary condition u0 t equal to 0 and ux1 t equal to 0 where t is greater than 0, and these are the initial condition. ये boundary condition है because x is lying between 0 and 1, and boundary condition always define on the boundary points of the line. They are 0 and 1. So these two conditions are boundary conditions. Initial conditions are defined on the time 0. So at t equal to 0, this is the one condition, initial condition, where x0 is equal to x. If x is lying between 0 and 1 by 4, and ux0 is equal to half minus x if x is lying between 1 by 4 and 1 by 2, and ux0 is equal to 0 if x is strictly greater than half and less than 1, and utx0 partial derivative of u with respect to t at time equal to 0 is equal to 0. So these are the conditions, boundary condition and initial condition. We have to find a function u which satisfies the equation 1, that is the wave equation, one-dimensional wave equation, and which satisfies these boundary conditions. तो हम उसका वही मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स इसको सोल्व करेंगे. लेट वी अज्यूम दैट द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इज ऑफ द फॉर्म uxt इक्वल टू x into xx dt, where x is a function of x only and t is a function of t only, and substituting दिस वैल्यू ऑफ u इन फर्स्ट, हम फर्स्ट में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है. बिकॉज ये दिस इज द फंक्शन ऑफ x only and this is the function of t only, and both are independent, x and t. So these two functions will be equal to a constant. Let us assume that that constant is mu. So first equation, so if we put both of these equal to mu, then this will become x double dash minus mu x equal to 0, and x will become t double dash minus mu c square t equal to 0. वही फिर हम इनिशियल कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन हम देखते हैं अपनी. पहली बाउंड्री कंडीशन क्या है, u0 t इक्वल टू 0, यानी कि x को 0 पुट करोगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 0. तो दोनों का प्रोडक्ट 0, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0. अगर t ऑफ t को 0 मान लोगे तो u भी क्या हो जाएगा, 0. दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि u अगर 0 हो जाता है तो वो इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा, लेकिन u अगर 0 है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकता. बट हमें एक ऐसा u चाहिए जो इनिशियल कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है. t of t is not 0, otherwise u will be 0 and we will get a trivial solution, but this solution will not satisfy the initial condition. So uxt equal to 0 is not possible, so that we will get x0 equal to 0. उसी तरह से हमें दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है, u of x 1t इक्वल टू 0. तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव करो पहले 1 के x के रिस्पेक्ट में, तो u of x x3 क्या बनेगा, x डैश x t of t हमें दिया हुआ है व्हेन x इज इक्वल टू 1, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0. तो x को 1 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, x डैश 1 t t इक्वल टू 0. तो प्रोडक्ट इज 0, तो आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0. दिस कैन नॉट बी 0. t t इज इक्वल टू 0, देन u विल बी 0, and we show that you cannot be 0, otherwise you will not satisfy the initial condition. So we will get x dash 1 equal to 0. तो हमारे पास दो इन बाउंड्री कंडीशन गिवन है, उससे हमें दो इक्वेशन मिली, x x इक्वल टू x 0 इक्वल टू 0 एंड x dash 1 इक्वल टू 0. ओके, तो इन दो कंडीशन को लेके हम सोल्यूशन निकालेंगे पहले, फिर हम बाकी की कंडीशन, जो सोल्यूशन इन दो कंडीशन से आएगा, फिर हम उस सोल्यूशन पे इनिशियल कंडीशन निकालेंगे, और फाइनल जो भी सोल्यूशन आएगा दैट विल बी द डिजायर्ड सोल्यूशन. किसी ने मुझसे पूछा था डिजायर्ड सोल्यूशन क्या होता है, तो डिजायर्ड सोल्यूशन इज द सोल्यूशन व्हिच इज रिक्वायर्ड. सो पहला केस हम मान के चलते हैं म्यू इक्वल टू 0. म्यू को 0 मानोगे तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, x डबल डैश इक्वल टू 0 और t डबल डैश इक्वल टू 0.
एक्स डबल डैश इक्वल टू जीरो पुट करोगे एक्स एक्स क्या बन जाएगा ए एक्स प्लस बी। इस पे दोनों कंडीशन पुट करो, पहले एक्स जीरो इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो बी की क्या आ जाएगी वैल्यू जीरो। फिर एक्स डैश वन इक्वल टू जीरो, तो पहले एक्स डैश एक्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा एक्स डैश एक्स, यानी कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ए। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो यहाँ पे ए आएगा, ये गलत है अभी, ये भी गलत है, इसको करेक्ट इट विल बी ए है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स विल बी ए। So it will be a. Now x जीरो इक्वल टू जीरो को पुट करोगे तो क्या बनेगा b इक्वल टू जीरो, और x डैश वन इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो a इक्वल टू जीरो। तो हमें दोनों वैल्यू जीरो मिल गई a एंड b, तो इट मीन्स एक्स एक्स विल बी जीरो। एक्स एक्स अगर जीरो होगा तो म्यू भी क्या हो जाएगा जीरो, विच इज़ नॉट पॉसिबल, तो म्यू इक्वल टू जीरो इज नॉट पॉसिबल। फिर सेकेंड कंडीशन लेके चलोगे, म्यू इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। म्यू इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर लेके चलोगे तो एक्स एक्स ये बन जाएगा ए ई लैम्डा एक्स प्लस बी ई माइनस लैम्डा एक्स। तो एक्स डैश एक्स निकालोगे क्योंकि हमें कंडीशन जो है बाउंड्री कंडीशन वो फंक्शन और फंक्शन के डेरिवेटिव पे गिवन है, और फंक्शन क्या है वो एक्स एक्स। तो उसी तरह से बाउंड्री कंडीशन पुट करोगे तो हमारे पास ए की वैल्यू और बी की वैल्यू फिर से जीरो आ जाएगी। तो ये बी की वैल्यू जीरो आने से फिर एक्स जीरो हो जाएगा। सो वी आल्सो रिजेक्ट म्यू इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम कौन सी कंडीशन लेके चलेंगे, म्यू इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर। तो म्यू इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर पुट करोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा एक्स डबल डैश प्लस लैम्डा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो। तो वहाँ से एक्स एक्स ये बन जाएगा और एक्स डैश एक्स ये बन जाएगा। अब उस पर फिर से बाउंड्री कंडीशन रखोगे, तो बाउंड्री कंडीशन क्या है आपके पास, एक्स 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 जीरो इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स डैश वन इक्वल टू जीरो। तो एक्स फिर वही बाउंड्री कंडीशन पुट करोगे आप, एक्स जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स जीरो इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा ए इक्वल टू जीरो। फिर एक्स डैश वन इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो यहाँ से क्या बनेगा एक्स डैश वन, ए तो पहले से ही जीरो हो चुका है, तो यानी कि एक्स डैश एक्स क्या बनेगा बी लैम्डा कोस लैम्डा एक्स, ये बचेगा ना। अब इसमें वन पुट करोगे तो क्या बनेगा बी लैम्डा कोस लैम्डा इक्वल टू जीरो। अब तीनों की प्रोडक्ट जीरो है, या तो बी जीरो होगा या लैम्डा या फिर कोस। तो अगर लैम्डा जीरो हो गया तो म्यू जीरो हो जाएगा, तो म्यू तो जीरो है ही नहीं, तो हमारे पास बी जीरो होगा या फिर कोस लैम्डा। अगर हम बी को भी जीरो लेंगे और ए पहले से ही जीरो है तो एक्स एक्स क्या हो जाएगा जीरो, विच विल लीड टू यू इक्वल टू जीरो। इसलिए हम किसको जीरो लेके चलेंगे कोस लैम्डा को। कोस लैम्डा जीरो कब होता है, when lambda is equal to odd by 2, जैसे 3 पाई बाई 2 7 पाई बाई 2, इन सब पे कोस की वैल्यू क्या होती है जीरो। तो 2n माइनस वन इज एन ओड नंबर, सो पाई बाई 2 वेर n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो। तो इस तरह से हमें ये लैम्डा की फाइनल वैल्यू मिली। तो लैम्डा की अगर ये वैल्यू है तो एक्स एक्स क्या बना था आपके पास ए कोस लैम्डा एक्स प्लस बी साइन लैम्डा एक्स, जिसमें फिर ए तो जीरो ही हो गया था, तो अब क्या बचेगा बी साइन लैम्डा एक्स। तो बी की जगह हम बी एन रखेंगे क्योंकि ये लैम्डा की हमारे पास हर n के लिए वैल्यू आई है, चाहे n 1 2 3 कुछ भी हो। तो एक्स एन एक्स क्या बचेगा बी एन साइन 2n माइनस वन पाई बाय 2। सो दिस इज द मैम सोल्यूशन। तो हमारे पास म्यू क्या था माइनस, मैम किसी को आवाज नहीं आ रही। बाकी प्रॉब्लम आपके वहाँ से है। सो दिस इज द सोल्यूशन, जहाँ पे हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या आई है 2n माइनस वन इंटू पाई बाई 2, तो म्यू की वैल्यू क्या आई थी माइनस लैम्डा से। सो दिस इज द सोल्यूशन। तो ये तो मेरे पास एक्सएल के एक्स का सोल्यूशन निकल आया। इसी तरह से टी डबल डैश हमारे पास इक्वेशन क्या थी टी डबल डैश माइनस सी स्क्वायर इंटू में म्यू इंटू टी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास टी की फॉर्म में फंक्शन आ गया। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास टी एन टी ये बन जाएगा।
सो म्यू एन एक्स टी हमारे पास क्या बना, एक्स एन एक्स इंटू में टी एन टी, तो इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे तो बी एन इंटू में सी एन, ठीक है। यहाँ से देखो बी एन इंटू में सी एन साइन टू एन माइनस वन बाई 2 एंड कोस ऑफ टू एन माइनस वन बाई सी टी बाई 2। उसी तरह से इसके साथ प्रोडक्ट करोगे तो क्या बनेगा, बी एन इंटू में डी एन साइन ऑफ हाफ ऑफ टू एन माइनस वन पाई सी बाई सी टी एंड साइन ऑफ, इसको कॉमन ले लिया हमने, साइन टू एन माइनस वन पाई बाई 2 इंटू में एक्स है, यहाँ पे इन्होंने गलत लिखा हुआ क्योंकि यहाँ पे हमारे पास साइन एक्स था ना, तो यहाँ पे एक्स आएगा आपके पास। तो ये करेक्शन मैं करा रही हूँ, ये आपको करनी है बाद में। यहाँ पे एक्स आएगा, ठीक है। तो ये वाली टर्म इन्होंने कॉमन ले ली, सो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। अब हमारे पास जहाँ पे ई एन क्या, बी एन टू सी एन एंड एफ एन इज इक्वल टू बी एन इंटू में डी एन, तो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। अब हमने जो भी सोल्यूशन निकाला उसमें से बाउंड्री कंडीशन ही अप्लाई करी है। अब हम वो सोल्यूशन निकालेंगे जिसमें हम इनिशियल कंडीशंस भी अप्लाई करेंगे। जब इनिशियल कंडीशन अप्लाई करोगे तो इनिशियल कंडीशन क्या थी आपके पास, वो देख लीजिए। इनिशियल कंडीशन थी यू एक्स जीरो इक्वल टू दिस, इनिशियल कंडीशन दी हुई है यू पे और इसके डेरिवेटिव टाइम पे। तो यू एन एक्स टी अगर इसका सोल्यूशन है तो समेशन भी इसका सोल्यूशन होगा, दिस इज द जनरल सोल्यूशन। तो इनिशियल कंडीशन अप्लाई करने के लिए पहले इसके पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, सो दिस इज द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। अब t इक्वल टू 0 पुट करोगे, तो जब t इक्वल टू 0 पुट करोगे यहाँ पे तो ये वाली टर्म तो 0 ही हो जाएगी क्योंकि साइन 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपके पास ये कंडीशन बचेगी साइन, और यहाँ पे भी t को 0 पुट करोगे तो cos 0 इज 1, तो बचेगा क्या, ई एन साइन टू एन माइनस वन बाई 2 पाई एक्स एंड समेशन। उसी तरह से यहाँ पे t को 0 पुट करोगे तो ये वाली टर्म तो 0 ही हो जाएगी, बचेगी कौन सी, ये वाली टर्म 1 हो जाएगी, तो एफ एन इंटू में दिस कॉन्स्टेंट टर्म एंड दिस, तो दिस ये कंडीशन बच गई। आप ये आपके पास आ गया यू एक्स जीरो और यू टी एक्स जीरो, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप देख सकते हो, तो ये आपके पास जो टर्म है ये क्या है आपके पास, यू एक्स जीरो इक्वल, ये जो आपके पास है यू एक्स जीरो इक्वल टू दिस इज दी यू एक्स जीरो इज अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली एंड दिस इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, तो इट इज द साइन सीरीज है। तो ई एन कैसे निकाल दो आप, इन्होंने जैसे किया हुआ है दोनों तरफ डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय दिस, तो ई एन की वैल्यू ये आ जाएगी आपको, देखो क्योंकि टू साइन ए, यहाँ पे देखोगे तो ये दोनों टर्म इन्होंने मल्टीप्लाई किया साइन हाफ ऑफ टू माइनस टू एम माइनस वन इंटू पाई एक्स, तो ये देखो यहाँ पे ये जो दोनों का, इसको अगर मान लो आप साइन एम एन की टर्म में है तो इसको एक एन की टर्म में मान लो आप वेरिएबल और एक एम की टर्म में वेरिएबल मान लो, तो तुम्हें आपको पता होगा कि ये वैल्यू आपके पास 1 कब होती है और 0 कब होती है, तो ये 1 तभी होती है जब ये दोनों सेम हो, अदरवाइज ये वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो यहाँ से सिर्फ आप समेशन में इंटीग्रेट करोगे तो ई एन ही बचेगा और यहाँ पे एम की वैल्यू क्या बचेगी एन। अदरवाइज अगर आप एम और एन को डिफरेंट लेके चलोगे तो ये वैल्यू हमेशा ही 0 होगी आपके पास। तो यहाँ से ई एन की वैल्यू आ जाएगी जैसे इन्होंने लिखा हुआ है साइन ऑफ हाफ ऑफ टू एन माइनस वन पाई एक्स, यहाँ पे टू एन माइनस वन आएगा, काफी मिस्टेक की हुई है तो मिस्टेक आपको सोल्व करनी पड़ेगी, तो सही देखना पड़ेगा। यहाँ पे जो इन्होंने मल्टीप्लाई किया हाफ ऑफ टू एम माइनस वन से मल्टीप्लाई किया ना, और यहाँ पे देखो
यहाँ पे आएगा आपके पास 2n minus n into pi x। क्योंकि यहाँ पे आपके पास en sin into 2n minus 1 था ना, तो यहाँ पे 2n आएगा। ठीक है, और हमने मल्टीप्लाई किया 2m माइनस 1 पाई से। तो ये फॉर्मूला होता है, अगर दोनों वेरिएबल m इक्वल टू n है तभी वैल्यू क्या होगी 1, अदरवाइज क्या हो जाएगी 0। तो m इक्वल टू n पे इसकी वैल्यू क्या होगी 1, बाकी सारे कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे 0, तो बचेगा क्या सिर्फ en। ठीक है, और यहाँ से भी आप देख सकते हो m इक्वल टू n पे इसकी इसकी m इक्वल टू n पे ही ये इसके बराबर होगा। तो m को n पुट करोगे तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, तो हमारे पास en की वैल्यू आ गई। ठीक है, उसी तरह से आपके पास सेकंड टर्म है, इन ए सिमिलर मैनर 20 लीड्स हो। उसी तरह से आप क्या करोगे, इसको भी 2m माइनस 1 पाई एक्स बाय 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे भी 2n माइनस 1 एफ एन की वैल्यू आ जाएगी। तो ई एन की वैल्यू आ गई आपके पास, दिस ई एन की वैल्यू आ गई आपके पास यहाँ से, और एफ एन की वैल्यू आ गई। तो इक्वेशन नंबर 21 और 22 से आपके पास ई एन और एफ एन की वैल्यू आ गई। बट यू एक्स जीरो अभी भी हमारे पास वैल्यू पुट करना है, तो यू एक्स जीरो की वैल्यू 3 इंटरवल में दी हुई थी, 0 से हाफ, 0 से 1/4, 1/4 से 1/2 और 1/2 से 1 के बीच में। तो इन तीनों पे वैल्यू हम पुट करके 0 से 1/4 के बीच में वैल्यू क्या थी x, 1/4 से 1/2 के बीच में 1/2 माइनस एक्स, अदरवाइज क्या थी 0। तो इन्होंने उसी तरह से इंटरवल को ब्रेक किया हुआ है ए एन की वैल्यू निकालने के लिए। 0 से हाफ के 1/4 के बीच में इसकी वैल्यू पुट कर दी x, और 1/4 से हाफ के बीच में 1/2 माइनस एक्स, और बाकी तो फिर 1/2 के बीच में 0 ही हो जाएगी, तो इन्होंने कंसीडर नहीं किया। तो उस तरह से सोल्व करके आपके पास ई एन की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज द फाइनल फंक्शन। और उसी तरह से हम एफ एन में वैल्यू पुट कर देंगे, जो आपके पास एफ एन था, एफ एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो ई एन और एफ एन की वैल्यू आप जो भी आपका डिजायर्ड सोल्यूशन था उसमें पुट करके आपके पास फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा। So this is the solution of the given one-dimensional wave equation with initial condition and boundary condition। उससे पहले भी आपका एग्जांपल था फोर्थ, तो मैंने फोर्थ के काफ़ी सारे पार्ट आपको समझा दिए थे, तो वो आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन। इसके 5 पार्ट है, सॉरी 6 पार्ट है, आप 6 कर सकते हो। बाकी 3 एग्जांपल मैंने आपको पूरे पूरे समझा दिए थे, फोर्थ क्वेश्चन के भी समझाए थे। So this is the examples. These are the examples based on the one dimension.